الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم و صدق النبی الکریم الامین الحکیم۔ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں تو پھر اور کیا ہے۔ بشر کی سر عرش مہمان نوازی یہ عظمت نہیں تو پھر اور کیا ہے۔ جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دوا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، یہ رحمت نہیں تو پھر اور کیا ہے۔ تم اقبال یہ نعت کہہ تو رہے ہو، مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کہہ رہے ہو۔ کہاں تو کہاں وہ ممدوح یزداں، یہ جرت نہیں تو پھر اور کیا ہے۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ اگر نعروں کا وقت بھی مجھے ہی دے دیں تو میں آپ کی مہربانی سمجھوں گا، کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے اور چند لمحے آپ کے سامنے گوشت کچھ چیزیں رکھنی ہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی کلمت الحق آپ کے سامنے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محتشم، اللہ پاک اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں جب اپنے آپ کو سنوارنے لگو تو کسی اور کو نمونہ نہ چننا، فاطمہ کے بابا کو نمونہ چن لینا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کسی اور کو نمونہ نہ بنانا، حسین کے نانا کو اپنا نمونہ بنا لینا۔ تمہارے سنورنے کی بات اور ذریعہ اور واسطہ یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو میرے محبوب کے سانچے میں ڈال لو۔ اس نمونے میں ڈال جاؤ گے تو ایک جگہ اور آواز دی، کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ جب تم اس نمونے میں نظر آؤ گے تمہارا رب تم سے پیار کرے گا، وہ تم سے الفت کرے گا، لیکن الفت تبھی کرے گا جب تم اس کی سانچے میں اس نمونے میں ڈھل جاؤ گے۔ عزیزان محتشم، اس کی ایک مثال دے کے واضح کرتا ہوں کہ آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ، اتباع کہتے ہیں پیچھے پیچھے چلنا، اعمال کے پیچھے پیچھے لگ جانا۔ میں کھڑا ہو جاؤں، بچہ کھڑا ہوتا ہے تو یہ اتباع کہلاتی ہے۔ عزیزان محتشم، میں اور آپ محبت کے تقاضے رکھتے ہیں۔ میرا بچہ ہو اور میں باہر چلا جاؤں، اپنے بچے سے جدا ہو جاؤں باہر کسی ملک میں یا کسی اور شہر میں، وہاں مجھے میرے بچے جیسی تصویر نظر آئے تو مجھے اس سے پیار ہو جائے گا، کیونکہ اس میں جھلک میرے بچے کی ہے۔ اگر اس کی ادائیں بھی میرے بچے جیسی ہوں گی تو پیار اور بھی بڑھ جائے گا کہ اس میں تو ادائیں بھی بچے جیسی ہیں۔ اگر اس کی حرکات و سکنات میرے لخت جگر جیسی ہوں گی تو اس کی حرکات و سکنات سے بھی مجھے پیار ہو جائے گا۔ اس کی بولی اگر میرے بچے جیسی ہوگی تو اس کی بولی سے بھی پیار ہو جائے گا کہ اس کی تو بولی میں بھی میرے بچے کی جھلک نظر آ رہی ہے۔ تو دوستان گرامی قدر، اللہ قرآن میں یہ بتا رہا ہے، لوگو کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، جب تم میں میرے مصطفیٰ کی جھلک نظر آئے گی تمہارا رب تم سے پیار کرے گا۔ آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہے کوئی میری ان باتوں پر عمل کرے یا عمل والوں تک میری یہ باتیں پہنچا دے تو میں آگے بڑھا اور آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ میں، تو حضور نے میرا ہاتھ تھام لیا
अजीज़ान मोहतरम, ये तो मुहिब भी जानता है जब महबूब हाथ थाम ले तो बंदे के दिल की कहानी कहाँ से पहुँच जाती है। जब हाथ थामा तो हजूर फरमाते हैं 5 बातें हजूर ने वसीयत और नसीहत की कि अपने आप को गुनाह से रोकते रहो, बहुत बड़ी इबादत गुजार बन जाओगे। अजीज़ान मोहतरम, आप भी बुजुर्गों के पास, बड़ों के पास बैठे, आज भी वो बुजुर्ग जो ज़ईफ हो चुके हैं वो आज भी ये वसीयत और नसीहत कर रहे होते हैं कि बेटा नेकी वड्डी नेकी नहीं हुंदा, गुनाह तू बचना वड्डी नेकी हुंदा है। दोस्ताने ग्रामी कदर, ये बात उन बाबों की नहीं है, ये बात भी आपके ताजदार की है कि जब बंदा अपने आप को गुनाह से रोकता रहता है, हजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बंदा बहुत बड़ा इबादत गुजार बन जाता है। आज तो ज़माना ही बदल चुका है, आज इंसान किस अंदाज में चल रहा है ये मैं और आप बेहतर जानते हैं। आज दावे तो गुलामी रसूल में मौत के कबूल के भी हैं, लेकिन दोस्ताने ग्रामी कदर, लेकिन इस मुस्लिम को सजदा रेजिया नसीब नहीं कि अपने रब के आगे सजदा भी कर सके। यहाँ दावे है कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, लेकिन अपने घरों में हया का दामन नहीं थाम रहे। दोस्ताने ग्रामी कदर, जहाँ ये दावे हैं कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, लेकिन अर्तुगल पे तो सारा दिन गुजर जाए, आप अपने कुरान से जुड़े ना रहे, ये कौन सा इंसाफ है। अज़ीज़ान मोहतरम, आज मैं एक सवाल रखना चाहता हूँ, ये आप और मैं अपने दिल में झांके, परखे तो सही। हजरत जुनैद बगदादी ने, आप फरमाते मैंने एक किताब लिखी, 12 साल लिखने में लग गए, 12 साल फिर कांट छांट करता रहा, और 12 साल इस इरादे में रहा कि आज लोगों के सामने रखता हूँ, आज रखता हूँ। का 36 साल के बाद बगदादी, जुनैद बगदादी कहते मेरे दिल में ख्याल आया, कुरान के होते बगदादी तेरी किताब की क्या अहमियत है, क्या फजीलत है। तो मैंने किताब को फाड़ दिया, जब कुरान मौजूद है तो फिर तेरी किताब की क्या वैल्यू। आओ दोस्ताने ग्रामी कदर, आज कुरान जो बातें हमें दे रहा है, आज कुरान जो सिखा रहा है उससे हम गाफिल हैं, कुरान जो बता रहा है उससे हम छोड़ चुके हैं। आका रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान बता रहा है कि मेरे महबूब तुम्हारे लिए नमूना है, और ये नमूना बता रहा है कि अपने आप को गुनाह से रोकते रहो। आज तो जमाना बदल चुका है, एक वक्त था पीर भी कामिल हुआ करते थे और मुरीद भी कामिल हुआ करते थे। मुरीदों को भी दुनिया की लज्जत की जरूरत न होती थी, वो अपने पीर का दामन थामते थे, तो इसलिए थामते थे कि मेरी दुनिया खत्म हो जाए और आखिरत संवर जाए। दुनिया का मेरे दिल से जो अरूज दुनिया का बना हुआ है और दुनिया की लज्जतों में जो मैं डूबा हुआ हूँ, निकल कर अपने रब के कुरब में आ जाऊं, अपने नबी की मोहब्बत में आ जाऊं। दोस्ताने ग्रामी कदर, आज तो मुरीद भी इसलिए मुरीद होता है कि पीर साहब का मुरीद बनूंगा तो बड़ा आदमी बन जाऊंगा, चौधरी बन जाऊंगा, मेरे पास दौलत आ जाएगी। दोस्ताने ग्रामी कदर, एक शख्स हजूर के साथ जा रहा था और रास्ते में बातें कर रहा था, कहा मुझे आप बड़े प्यारे हैं, आप मुझे मेरी जान से बढ़ के प्यारे हैं। हजूर फरमाते क्या कह रहे हो, जरा ख्याल तो करो। कहा नहीं आका, मुझे आप बड़े प्यारे हैं, मुझे मेरी औलाद से बढ़ के आप प्यारे हैं। हजूर फरमाते फिर फिक्रो फाका के लिए तैयार हो जाओ, जो मुझसे मोहब्बत करता है उसकी तरफ फिक्रो फाका सैलाब की तरह बढ़ता है। आज तो दोस्ताने ग्रामी कदर, पीर के आस्थाने पे इज्जत ना मिले तो लोग छोड़ जाते हैं, आज अगर प्रोटोकॉल ना मिले तो लोग छोड़ जाते हैं। दोस्ताने ग्रामी कदर, मेरे आका फरमाते हैं कि अगर तुझे वाकई मुझसे मोहब्बत है तो फिर फिक्रो फाका के लिए तैयार हो जाओ। आका रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक साबी थे, वो हजूर को देख रहे थे और ज़ारो कतार रो रहे थे। कहते आका, हजूर फरमाते क्या बात है। कहा आका बस एक बात खाए जा रही है, मैं आपसे बड़ा प्यार करता हूँ, आपके लिए हर वक्त बेचैन रहता हूँ, एक ख्याल आता है घर में, मैं घर जाता हूँ तो आपके ख्याल में रहता हूँ। इमाम कुस्तलानी फरमाते हैं मोहब्बत की 3 अलामतें, एक ये अलामत है कि जब वो बोलता है तो यार की बोली बोलता है, किसी और की नहीं बोलता, और जब वो चुप रहता है तो उसकी चुप में, उसकी खामोशी में भी उसका यार होता है। और तीसरी अलामत ये है, जब वो अमल करता है तो उसके अमाल से भी उसके यार की झलक नजर आती है, यार की झलक नजर आती है। अज़ीज़ान मोहतरम, वो कहते हैं आका मैं जब घर होता हूँ तो बेकरार रहता हूँ और उस वक्त तक चैन नहीं पाता जब तक आपको देख ना लूं, मुझे एक ख्याल खाए जा रहा है। हजूर फरमाते कौन सा ख्याल। कहा आका जब मैं इस दुनिया से मर जाऊंगा और आप इस दुनिया से पर्दा फरमा जाएंगे,
विसाल कर जाएंगे। तो आका मेरा क्या बनेगा? मैं जब क़यामत वाले दिन अल्लाह जन्नत की तकसीम करेगा तो आप तो अंबिया के साथ होंगे और मैं निचले दर्जे में हूँगा, हजूर फिर आपको कैसे देखूंगा? ये बात मुझे खाए जा रही है। हजूर फरमाते जिससे तू मोहब्बत करता है उसी के साथ होगा। आओ दोस्ताने ग्रामी कदर, आज माहौल बदल चुका है। पीरे कामल हुआ करते थे और मुरीदे कामल भी हुआ करते थे। आज तो पीरों को भी अपनी जेबों की गर्ज है, बस मेरी जेब भारी हो जाए और मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाए, मैं बड़ा आदमी बन जाऊं। दोस्ताने ग्रामी कदर, आका रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि तुम गुनाहों से बचते रहो, बहुत बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। एक मुरीद कामल थे, अपने पीर कामल से मिलने जा रहे थे। रास्ते में एक लड़की ने मदद मांगी, का मेरी मदद कीजिए। लड़का रुक गया कि आका का फरमान है जब कोई हाजत के लिए पुकारे तो बंदा उसकी हाजत पूरी करे तो क़यामत वाले दिन अल्लाह उसकी हाजत पूरी करेगा। तो लड़का रुक गया और उस लड़की के पास गया। जब अंदर उसने कहा अंदर आ जाइए, जब वो अंदर गया तो उसने कुंडी लगा ली। अब लड़का परेशान हो गया, रास्ता कोई नहीं, अब निकलना मुश्किल है, फंस गया था इसके चुंगल में। अपने रब से मांग रहा था जो दिल की भी सुनता है, दिल ही दिल में उससे मांग रहा था जो दिल की सुनता है। या लमु माफी कलूबिकुम, जो दिल के हाल भी जानता है। परेशान था, अब कैसे निकलूं इसके चुंगल से। लड़की कहती है अगर मेरी ख्वाहिश पूरी ना की तो मैं तुझे बदनाम करूंगी, रुसवा करूंगी, जलील करूंगी। अब दिल ही दिल में पुकार रहा होगा, ऐ अल्लाह जिस तरह तूने यूसुफ को निकाला था आज इस बंदे को भी निकाल दे, आज अपने इस बंदे को भी इसके चुंगल से निजात दे। दिल ही दिल में पुकार रहा था उसको जो दिल की सुनता है। तो दिन में तरकीब आई तो लड़की को कहने लग पड़ा कि मैं पेशाब करके आता हूँ फिर तेरी हाजत पूरी करता हूँ। गया वाशरूम और सारी गंदगी पेशाब की अपने ऊपर मल ली। इसी हालत में बाहर आया तो लड़की ने नाजेबा लफ्ज कहे और बाहर भाग गई। उसने अपने रब का शुक्रिया अदा किया, ऐ अल्लाह आज इसके चुंगल से तू मुझे ना आजाद करता तो मैं फंस गया था, मैं रोज़े में से तुझे क्या मुंह दिखाता। वापस गया घर, गुस्ल किया। गुस्ल करने के बाद अपने पीरे कामल की तरफ दौड़ा दौड़ा जब पहुंचा तो उस वक्त पीर जेब नहीं देखा करते थे, दिल देखा करते थे। आज तो माहौल ही बदल चुके हैं। पीरे कामल कहते बेटा तुमसे खुशबू बड़ी प्यारी आ रही है। कौन सा इतर लगाया? कहा नहीं हजरत कोई इतर नहीं लगाया, बस आपसे मिलना था, गुस्ल किया और आपकी बारगाह में आ गए। कहा नहीं बेटा तुमसे खुशबू बड़ी प्यारी आ रही। कहा हजरत बस आपसे मिलने की गर्ज थी और घर गया हूँ, गुस्ल किया है, ताज़ा गुस्ल करके आपकी बारगाह में। जब इसरार किया पीर साहब ने तो बार बार इसरार पे जवाब देते हैं कि हजरत ये माजरा हो गया था और मैंने यूं यूं किया और अल्लाह पाक ने मुझे उसके चुंगल से आज़ाद किया। तो पीर कामल कहते हैं बेटा इससे बढ़ के भी कोई खुशबू होती है। तेरे और मेरे नबी फरमाते हैं कि जब कोई जवान बंदे को कोई लड़की गुनाह की दावत दे और गुनाह उसकी कुदरत में हो और वो अपने रब के डर की वजह से छोड़ दे, रोज़े महशर जब किसी को कोई साया नसीब नहीं होगा, अल्लाह अपने अर्श का ठंडा साया देगा, अपने अर्श का ठंडा साया अता फरमाएगा। हजूर फरमाते हैं कि अपने आप को गुनाह से रोकते रहो, बहुत बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। आओ दोस्ताने ग्रामी कदर, मैं और आप अपने गिरेबानों में झांके तो सही। आज जहां बहन को हक नहीं दिए जाते, ये मुसलमान भी कहता है गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। अपनी बहन को हक देना तो तुझे अपने नबी की गुलामी में कबूल नहीं, तू और क्या कुर्बान कर सकता है। आज दोस्ताने ग्रामी कदर, तिल का हदूदुल्लाह को तो हम क्रॉस कर चुके हैं, अबूर कर चुके हैं, फिर भी दावा करते हैं कि हम गुलामी रसूल में मौत भी कबूल। आओ उनसे पूछे गुलामी रसूल होती क्या है। जो एक तरफ तख्त था, रनाइयां थी, लताफतें थी, मौज मस्तियां थी और दूसरी तरफ करब था, तड़प थी, बच्चों की प्यास थी और नेज़े की नोक थी। दोस्ताने ग्रामी कदर, वो तख्त पर बैठा मौज मस्तियां कर रहा था, ये गुलामी रसूल में कुर्बानियां दे रहे थे। आओ दोस्ताने ग्रामी कदर, दूसरी बात हजूर फरमाते हैं अल्लाह की तकसीम पर राजी हो जाओ, बहुत बड़े गनी हो जाओगे, बहुत बड़े बादशाह बन जाओगे, बहुत बड़े गनी हो जाओगे। दोस्ताने ग्रामी कदर, मैं और आप किसी और को गनी की फहरिस्त में शामिल करते हैं। हजूर फरमाते हैं गनी तो होता ही वो है जो उसकी तकसीम पर राजी हो जाए, उसकी तकसीम पर राजी हो जाए।
अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी, आप को किसी ने खबर आके दी कि हजरत आपके कारोबार में नुकसान हुआ है, तो आपने अपने दिल की तरफ देखा तो अपने रब का शुक्रिया अदा किया, या अल्लाह तेरा शुक्र है। और फिर किसी ने खबर दी, कहा नहीं हजरत नुकसान नहीं हुआ, नफा हुआ है। आपने फिर अपने दिल की तरफ देखा और कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है। तो लोगों ने, पास बैठे लोगों ने पूछा, हजरत ये क्या माजरा है, नफे पर भी शुक्र और नुकसान पर भी शुक्र? कहा जब मुझे खबर मिली कि मुझे कारोबार में नुकसान हुआ है तो मैंने अपने दिल की तरफ देखा, जब दिल की तरफ देखा तो मैंने अपने रब का शुक्रिया अदा किया कि मेरा दिल गम में मुब्तला नहीं हुआ, मगमूम नहीं हुआ, इसको नुकसान, दुनिया के नुकसान से कोई गर्ज नहीं। और जब नफे की खबर सुनी तब भी मैंने अपने दिल की तरफ देखा तो इसको दुनिया के नफे से भी कोई गर्ज नहीं, मैंने अपने रब का शुक्रिया अदा किया, ऐ अल्लाह दुनिया के नफे नुकसान से मेरे दिल को तूने पाक कर दिया। और दोस्तान ग्रामी कदर, हजूर फरमाते हैं जो बंदा अल्लाह की तकसीम पर राजी हो जाए वही सबसे बड़ा गनी है। वो किसी ने क्या खूब कहा, वो जन्नत मेरे केड़े लेखा जिथे तू नजर ना आवे, वो दोजख मैनू लख बहिश्ता जिथे तू आवे ते जावे। दोस्तान ग्रामी कदर, मैं और आप, मैं आपको उस वादी में लिए चलता हूं जहां असली तकसीम पर भी कोई राजी हो रहा था। एक तरफ तख्त था, रनाइयां थी, लताफते थी, मौज मस्तियां थी, बहुत सारे अंदाज थे, फौज थी, और एक तरफ करब की दुनिया थी, बच्चों की प्यास थी, भूख थी। दोस्तान ग्रामी के अंदर अजीजा ने मोहतरम नेज़े पर चढ़ना था, वो नेज़े पर चढ़ के भी खुश हो रहा था और ये तख्त पर भी रो रहा था। बस फर्क ये था वो सांस के बावजूद मुर्दा था, वो सांस के बावजूद भी मुर्दा था, ये नेज़े पर सांस के बगैर भी जिंदा था। जो उसकी तकसीम पर राजी हो जाए वो सांस का भी मोहताज नहीं रहता, बल्कि सांस भी उसे तलाश करती रहती है। कुरान ने आवाज दी, ला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाह, जो मेरा हो के मरे उसे मुर्दा नहीं कहना, वही तो असल जिंदा है। जो उसकी तकसीम पर राजी हो जाए वो बहुत बड़ा गनी है। और तीसरी वसीयत हजूर फरमाते हैं कि वो मोमन, अगर कामल मोमन बनना चाहते हो तो अपने हमसायों के साथ अच्छा सलूक करो। जो तुम अपने हमसायों के साथ नेक सलूक करो, कामल मोमन बन जाओगे। दोस्तानी ग्रामी कदर, आज मैं और आप अपना हयाता करें। एक हदीस के अल्फाज हैं, वल्लाहि ला यौमिन, वल्लाहि ला यौमिन, वल्लाहि ला यौमिन। अर्ज की गई या रसूलल्लाह, हजूर फरमाते कसम है वो मोमन नहीं, कसम है वो मोमन नहीं, कसम है वो मोमन नहीं। पूछा गया या रसूलल्लाह कौन मोमन नहीं? हजूर फरमाते वो जिसकी तकलीफ से उसका पड़ोसी महफूज नहीं। आज दोस्तान ग्रामी कदर, पड़ोसी तो बड़ी दूर की बात है, आज तो घर वाले महफूज नहीं, आज सगा बाप महफूज नहीं। माँ तड़पती है, बेटा मीठे बोल नहीं बोलता। जिस माँ ने सारी सारी रात जाग के पाला था, जिस माँ ने तेरे लिए जगराते किए, तेरे लिए रोती थी, तड़पती थी, तो बीमार होता था, उसकी नींदें हराम हो जाती थी, वो अपनी उम्र की कमी की दुआ किया करती थी, या अल्लाह मेरी उम्र भी मेरे बच्चे को लग जाए और मेरे बच्चे को कुछ ना हो। जो तेरे लिए सारी रात आंसू बहाया करती थी, लोगों के सामने मिन्नतें समाजते किया करती थी, मेरे बच्चे की उम्र दराजी के लिए दुआएं किया करो। मेरा बच्चा बीमार है तो माँ जगह जगह जाके दुआएं करवाती है, लोगों की मिन्नतें समाजते करती है, मेरे बेटे के हक में दुआ करो। जब यही बेटा जवान हुआ तो माँ को धक्के देता है, उस माँ के दिल पर क्या बीतती होगी। दोस्ताने ग्रामी कदर, आज हमें अपनी दुनिया से गर्ज है, जो मैं चाहता हूँ वही पसंद करता हूँ, जो मेरी ख्वाहिश है वही मुझे पसंद है, और मैं लोगों से वही ख्वाहिश रखता हूँ कि मेरे साथ यही सलूक करें। दोस्ताने ग्रामी कदर, मेरे और आपके नबी के घर का ऐसा मौल नहीं था, पत्थर मारने वालों को भी दुआ दिया करते थे, अपने बाबा के कातल को भी यहाँ शरबत पिलाए जाते थे। वो उसकी तकसीम पर राजी थे कि अगर हमारे हिस्से में शहादत है और इनके हिस्से में जुल्म है तो हम शहादत को कबूल करते हैं और हंस के कबूल करते हैं। दोस्ताने ग्रामी कदर, वो तख्तों पर भी बेकरार रहे, ये नेज़े पर भी करार में आ गए। जो उसकी तकसीम पर राजी हो जाए वही तो बहुत बड़ा गनी होता है। वो सांस टूट भी जाए तो नेज़े पे चढ़ के रब की बोलियां बोलता है। और दोस्ताने ग्रामी कदर, हजूर फरमाते हैं जो तुम अपने हमसायों के साथ नेक सलूक करो, कामल मुसलमान बन जाओगे। आज दोस्ताने ग्रामी कदर,
एक घर शादी हो तो दूसरे घर की नींदें उड़ जाती हैं। वो कहता जरा डेक बंद करे, मेरे बाबा का मेरा बाबा दिल का मरीज है, उसकी छाती खराब है, वो चेस्ट इन्फेक्शन में मुब्तला है, जरा थोड़ी आवाज आस्ता कर दे, अभी सोया है, कहीं उसकी नींद में खलल ना आ जाए। ये साहब और भी ऊंची करते हैं, कहा जा हम अपने घर में जो भी करें, हम छज वगाएं ते भावें छाननियां, साडी अपनी मर्जी तेरी अपनी मर्जी, तू अपने घर में जदों तेरी शादी होवे तू जो मर्जी कर ले। ना दोस्तान ग्रामी कदर, इस बात को भी हजूर ने अपनी उम्मत के सामने रखा है। आका रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक कश्ती में आप सवार हो और मुख्तलिफ जगहों पे लोग बैठते हैं, कोई दाएं पे, कोई बाएं पे, कोई आगे, कोई पीछे। ये कश्ती की हालात होते हैं बैठने के, कोई कहाँ बैठा होता है, कोई कहाँ बैठा होता है। हजूर फरमाते हैं कोई बंदा उठा और किसी जगह से जहां वो बैठा था वहां सुराख करना शुरू हो गया, तो मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क्या तुम उसके साथ कैसा सलूक करोगे? तो हम तो भाग उठेंगे, यार ये क्या कर रहा है? कहा यार मैं अपने जगह पे छज वगावत भावे छानने। कहा नहीं, तेरी वजह से सारी कश्ती डूब जाएगी। आज दोस्तान ग्रामी कदर ये दुनिया की कश्ती डूब रही है और हमें फिक्र नहीं, हम कहीं तड़प नहीं रहे, रो नहीं रहे। जिस दुनिया में गुमराह होने के लिए हुसैन ने करबला सजा दिया, हक और बातिल की जंग के लिए हुसैन ने करबला सजाया। दोस्तान ग्रामी कदर आज लोग दावे तो करते हैं, नारे तो लगाते हैं हुसैनियत जिंदाबाद, और हुसैनियत पर मर मिटने के दावे भी मैं और आप करते हैं। अजीजा ने मोहतरम, मैं आपसे भी और अपने आप से भी सवाल करता हूँ, ईमान से एक तरफ एक नेक आदमी हो लेकिन हो गरीब, ईमानदार हो, सच्चा हो, कभी उसने झूठ ना बोला हो, और एक तरफ गांव का नंबरदार हो, चौधरी हो, वजीर हो, एमएनए हो, बड़ा आदमी हो और वो उसका हक खा चुका हो और कब्जा कर चुका हो, आपके हिस्से में गवाही आ जाए तो ईमान से अपने अपने गिरेबानों में झांकना, आप बातिल का साथ देंगे या हक का साथ देंगे? अपने अपने गिरेबानों में झांकिए। आज हम अजीजा ने मोहतरम कभी उस गरीब का साथ नहीं देंगे, हम हमेशा अमीर की बात बोलेंगे। और दोस्तान ग्रामी कदर, फिर कूफा वालों को किस कटहरे में डालूं अगर आज वही मौल हम पेश कर रहे हैं। और दोस्तान ग्रामी कदर, हजरत मौला अली शेर खुदा करमुल्लाह ताला वजहुल करीम का कौल है, आप इरशाद फरमाते हैं वो जालिम मेरी नजर में कमजोर है जिसने किसी का हक गस्ब किया हुआ है, और वो मजलूम मेरी नजर में ताकतवर है जिसका हक गस्ब हो चुका है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है, कल रोजे महशर ये सवाल उठाएगा, अल्लाह अली के सामने भी लोग मेरे ऊपर जुल्म करते रहे और अली भी खामोश खड़ा रहा। और दोस्तान ग्रामी कदर, आज मैं और आप अपना इहाता करें, अपने आप को परखे देखें तो सही। आज जालिम जुल्म कर रहा है, हम कहते हैं यार कोई अपने घर में छज वगावे या छाननी, मां भी कहती है पुत्र तेनू इंदे नाल अटकल बनाने की जरूरत है, ये जो मर्जी करे, अमीर है फिर तेन भी तंग करेगा। दोस्ताने ग्रामी कदर, हुसैन का ये पैगाम है, आओ करबला वालों का पैगाम समझो। वो ये पैगाम देते हैं, एक तरफ यजीदियत की ताकत हो, तागूती ताकत हो, फिरौनी ताकत हो, और एक तरफ तन तनहा हुसैन हो, तो हुसैन तागूती ताकतों से नहीं डरता, वो अपने रब पर यकीन रखता है। और दोस्ताने ग्रामी कदर, वो बातिल को नेस्त व नबूद करने के लिए करबला तो सजा सकता है, अकबर की जवानी तो लुटा सकता है, असगर की मासूमियत तो कुर्बान कर सकता है, और मोहम्मद को तो कुर्बान कर सकता है, अब्बास के बाजू कलम होते तो देख सकता है, पर अपने नाना के दीन पर आंच आती नहीं देख सकता। और दोस्ताने ग्रामी कदर, आज हम किस दहाने पे खड़े हैं? और अगली वसीयत हजूर फरमाते हैं, जो तुझे अपने लिए पसंद हो वही मुसलमान भाई के लिए पसंद करो, जो तुझे अपने लिए पसंद हो। दोस्तान ग्रामी कदर, आज हम देखे तो सही, एक साहबी हजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कमाता हूं मेरा भाई कमाता नहीं, और जो मैं कमाता हूं वो भाई पे खर्च हो जाता है, बचत कुछ नहीं, सेविंग कुछ नहीं, बड़ी मेहनत करता हूं, बड़ी मेहनतों से कमाता हूं, भाई कमाता ही नहीं, वो फारग फिरता है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारा उसी पे खर्च हो जाता है और सेविंग कुछ नहीं। हजूर फरमाते हैं, तू अपने रब के इस करम पर राजी नहीं कि अल्लाह तुझे उसके वसीले से अता कर रहा है, उसके वसीले से अता कर रहा है। आज मैं और आप अपना हयाता करें। आज बड़ा भाई को छोटे भाई ताने दे रहे होते हैं, अब्बे मरण तो बाद तू कीता की है, तू सानू की करके विखाया, तू जिल्लत दा मुंह ही विखाया। दोस्ताने ग्रामी कदर, ये तो कोई उस भाई से पूछे
जिसने अपने बाबा के साथ रातें काटी, तकलीफों की रातें काटी थी, आज माहौल खुशगवार हो गया तो आज तुझे भी बातें आ गई। उस भाई से कोई पूछे जो अपने बाप के साथ काम काज में मसरूफ रहा, जब छोटे भाई उसे ताना देते हैं उसकी रात कैसे गुजरती है। दोस्तानी ग्रामी कदर, हजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो तुझे अपने लिए पसंद है वही मुसलमान भाई के लिए पसंद करो। आज माहौल बदल चुका है, ईमान से अपने अपने गिरेबानों में झांकना, ये वसीयत आपको भी है और मुझे भी है। मैं और आप शादी पे जाते हैं, किसी भी खुशी पे, किसी भी फंक्शन पे, वहाँ दावत के माहौल हो तो हम जाते हैं, अपने अपने गिरेबानों में झांकना है। वहाँ किसी बुजुर्ग को आपने खाना डाल के दिया हो जिसको आप जानते ना हो, ये अपने अपने गिरेबानों में झांके। क्या हमने कभी डाल के दिया है कि ये खाना आपके लिए, बाबा जी आप यहीं बैठे रहें, मैं आपको डाल देता हूँ, मैं भी तो आपके बेटों जैसा हूँ। लेकिन दोस्तान ग्रामी कदर, आवाज नफी की आती है। आज बड़े दावे के हम गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। हजूर तो चलते हैं, घर से बाहर निकलते अपने काशाना से, तो एक बूढ़ी खातून अपनी गठड़ी बांध के बैठी थी। हजूर फरमाते खातून ये तेरी गठड़ी मैं उठा लूं? कहा बेटा मेहरबानी उठा ले। तो हजूर गठड़ी उठाते हैं, सारे रास्ते बातें करती गई, बातें करती गई, सारे रास्ते बातें सुनाती गई, बेटा बच के रहना, मोहम्मद के चुंगल में ना आना, वो जादू कर लेता है, वो दीन धर्म छीन लेता है, और ना जाने क्या कर नाजेबा बातें करती गई। अजीजा ने मोहतशम, जब बंदा किनारे पे पहुंचता है, जब मंजिल पे पहुंचता है, तो फिर एक दूसरे से पूछता है कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, तुम फिर एक दूसरे से बड़ा अच्छे वक्त की बातें करते हैं। अब खातून सारे रास्ते बातें सुनाती गई और मेरे हजूर गठड़ी उठा के उसकी मंजिल तक गामजन रहे। दोस्ताने ग्रामी कदर, जब मंजिल आ गई तो खातून पूछती है बेटा जिसका तू बेटा है उस माँ की किस्मत का अरूज क्या होगा, वो माँ कितनी नसीबों वाली होगी जिसका तुझ जैसा बेटा है। और बेटे तुम हसीन इतने हो, दिल चाहता है तेरा चेहरा ही तकते रहे, दिल चाहता है तेरा चेहरा ही तकते रहे। हजरत हसन तड़प के बोले वाह सानू मिन कलम तारा कत्तो आईनी, सोनिया मेरी अख ने तेरे वर्गा नहीं तकिया। और फिर अपनी ही बात का जवाब देते हैं वाजमाला मिन कलम ताला दिन निसाओ, ए हसन तेरी आंख कैसे तकती, कोई माँ इस जैसा जनती तो फिर तकती। खुलिकता मुबर्रा मिन कुल्ले ऐब, हजूर आप हर ऐब से पाक है। एक हदीस के अल्फाज है, एक औरत ने हजूर को वसीम भी कहा और कसीम भी कहा। वसीम और कसीम उसे कहते हैं जिसको जिधर से भी देखे वो हसीन लगे, जिधर से भी देखे वो हसीन लगे, उसकी हर अदा हसीन हो, उसकी हर बात हसीन हो। दोस्ताने ग्रामी कदर, हजरत इंसान अगला नुक्ता देते हैं कि अन्ना का कद खुलिकता कमा तशाऊ, सोनिया इंज लगदा जिवें बनावन वाले ने भी तेरे को पुछ पुछ के बनाया होगा। अज़ीज़ा ने मोहतशम, आका रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब वो और बात करती है आप जैसा हसीन कोई नहीं, तेरे जैसा पुत्र सोना ही कोई नहीं दुनिया में, तेरे जैसा खूबसूरत ही कोई नहीं, हसीन कोई नहीं, मेरे बेटे बड़े हसीन हो आप, जिस बाप के बेटे हो उस बाप की अजमत को भी सलाम। ना हुसन चेहरे में हुसन है, सिर्फ चेहरे में हुसन नहीं बल्कि बेटे तेरे तो किरदार में भी हुसन झलकता है। आका रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछती है बेटा जरा अपना नाम तो बताओ, हजूर फरमाते वही मोहम्मद मैं हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औरत कहती है मैंने सुना था आपका जादू बड़ा जबरदस्त है, आप जादू कर लेते, एक ही लम्हे में अपना बना लेते हैं, मैंने सुना था आज देख भी लिया है, जो तेरा दिल चाहता है वही मुझसे पढ़वा ले। आओ दोस्ताने ग्रामी कदर, आज तो सगी माँ तड़प रही है, आज सगी बहन तड़प रही है, आज बहन हक मांग ले तो भाई उसे घर से निकाल देता है, जा आज के बाद तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। दोस्ताने ग्रामी कदर, बुल्ले शाह इसीलिए तो कह गए बुल्ले शाह पता तद लगसी जदो चिड़ी फंसी अतबादा, जब हम अपने रब के हजूर हाजिर हुए फिर खबरें होंगी। दोस्ताने ग्रामी कदर, आज देखिए घर में माहौल कैसे है, हमारे बीवी के साथ अखलाक कैसे है, बड़ा मीठा बनता है दोस्तों में बैठा बिजनेस करते हुए, जी बाजी जी बहन जी जी भाईजान, बड़े बड़े प्यार से बोलता है। और पूछा जाए ये ऐसे मीठे बोल क्यों बोल रहा है, कहा कारोबार है, अगर ऐसे बोल नहीं बोलूंगा तो फिर गाहक कैसे आएंगे। आओ दोस्ताने ग्रामी कदर, तू माँ के साथ कैसे बोलियां बोल रहा है, माँ कहे बेटा बात तो सुन ले, अम्मा हुण खपे होया तेरे कोल बह जावां, हुण तेरी सुनन लग पवां, सारी रात ये बेटा
फेस बुक पर गुजार देता है लेकिन अपनी अम्मा की बात नहीं सुनता। ये माँ की मजबूरी है तो इससे बातें करना, वरना कौन अपनी धुतकार सुन के भी बात को पसंद करता है। माँ फिर भी कहती रहती है बेटा दो बोल मीठे माँ के साथ भी बोल लिया कर, क्योंकि ये बचपन से बोलती आ रही है। जब तू गूंगा था, बहरा था, तुझे फहम नहीं था, तब भी तुझसे कलाम करती थी। इसे आदत हो गई, जो आदत है वो जाती नहीं। तो माँ को आदत होती है अपने बच्चों से वो बातें सुना भी दे तब भी बात करती रहती है। दोस्तान ग्रामीण कदर, आज मैं और आप अपना माहौल देखें, आज परखें आप किस दाने पे हैं। अपनी माँ को धुतकार देते हैं, झिड़कियां देते हैं, माँ चुप कर, सारी रात फेसबुक पर गुजारते हैं और माँ को धुतकारते हैं। दोस्तान ग्रामीण कदर, फेसबुक पर वक्त जाया ना करें। आज तो मैंने देखा है दरबारे रसूल पे पहुंचे होते हैं और फेसबुक की दुनिया में ये गुम होते हैं, जहां बड़े बड़े अपने होश खो जाया करते थे, उन्हें कोई बात ही नहीं याद रहती थी। आज वहां जाके भी तुझे होश बरकरार है और तुझे फेसबुक याद है और तू फेसबुक की दुनिया में। मैंने लोगों को देखा, इधर काबा का गिलाफ हाथ में है और इधर तस्वीर सेल्फी बन रही है। दोस्तान ग्रामीण कदर, या तो बड़े बड़े आते और गिलाफ काबा से चिमट के रोया करते थे, ऐ अल्लाह हमें माफ फरमा देना, ऐ अल्लाह हमें माफ फरमा देना, और अपनी माफियां तलब किया करते थे। आज दुआ करते हैं तो उसके लिए भी सेल्फी, और अगर अपने रब के हजूर सजदा है वो रह गया। पता नहीं ये वक्त भी इस उम्मत में देखना होगा कि वो सजदे की भी सेल्फियां बन रही होंगी। आओ दोस्तान ग्रामीण कदर, आज अंदाजा किस नहज पे हम पहुंच चुके हैं। आओ पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। कुरान आवाज देता है उदखुलू फिस्सिल्म काफा, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। इस्लाम को अपनी मर्जी पर ना चलाओ बल्कि अपने आप को इस्लाम की मर्जी पर डाल दो। दोस्ताने ग्रामीण कदर, हजूर फरमाते हैं आज बाहर तो बड़े मीठे बोल बोले जाते हैं और माँ के साथ तल्ख कलाम होता है और बीवी के साथ तल्खियों से बोला जाता है। हजूर फरमाते हैं बेहतरीन शख्स वो है जिसके अखलाक बेहतरीन है, और तुमसे बेहतरीन शख्स वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छे अखलाक रखता है, जो अपनी बीवी के साथ मीठा बोलता है। हजूर फरमाते हैं वो बेहतरीन शख्स है। ईमान से अपने अपने गिरेबानों में झांके, आज झिड़कियां देते हैं, आज हम डांटते हैं और तलख कलामियां करते हैं। हजूर फरमाते हैं अपनी बीवी के साथ मीठा बोलने वाला वही बेहतरीन शख्स है। हजूर उससे जमानत दे रहे हैं उसकी बेहतरीन। और एक हदीस के अल्फाज हैं खैरुकुम ले अहलिही व अना खैरुकुम ले अहली। हजूर फरमाते तुमसे बेहतरीन वो है जो अपनी अहल के लिए बेहतरीन है, और मैं तुम सबसे बेहतरीन हूँ क्योंकि मैं अपने घर के लिए बेहतरीन हूँ। आओ दोस्ताने ग्रामीण कदर, आज मैं और आप अपना माहौल देखें, आज किस नहज पे हम पहुँच चुके हैं। आकाए रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पांचवी वसीयत बताते हैं कि ज़्यादा हंसा ना करो, ज़्यादा हंसना दिल को मुर्दा कर देता है। मैं और आप अपने आप को झांकें। आज तो लोगों के साथ मजाक में वक्त गुजारा जा रहा है, टीज किया जा रहा है, एक दूसरे पे नुक्ता चीनियाँ करके हंसा जाता है। आओ अपने आप को मगमूम रखो, जितने गमज़दा होगे उतने रब के करीब होगे। आओ दोस्ताने ग्रामीण कदर, आपके और मेरे नबी मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी जिंदगी कहका नहीं लगाया, खुल के हंसे नहीं, और अगर किसी बात पे हंसी आ जाती तो कभी कभी साहबा कहते हैं रिजवानुल्लाह ताला अलैहि, हम हजूर के दांत देखते कभी कभी, और जब ये दांत नजर आते तो ऐसे लगता जैसे नूर निकल रहा है। तो दोस्तानी ग्रामी कभी कभी नजर आते, कभी कभी हजूर इतना हंसते, यानी इतना मुस्कुराहट चेहरे पे आती कि दांत नजर आने शुरू हो जाते, तो हमारे तो दिल की दुनिया ही बदल जाती कि आज हमें हमारे आका के दांत नजर आए। दोस्तानी ग्रामी कदर, आज मैं और आप किस किस अंदाज में क्या क्या कर रहे हैं, अपने आप को परखे। मैंने आपके सामने आपके आका की बातें रखी, मेरे अंदाजों में ना जाने कितनी कमियां कजियां रह गई, लेकिन बात उनकी थी जो लब खोले तो अल्लाह कहता है मा यंतिकु अनिल हवा इन हवा इल्ला वह्युन युहा, महबूब लब तेरे खुलते हैं, बोलता तेरा रब है। तो दोस्तानी ग्रामी कदर, मेरी कमजोरियां आड़े आ गई और मैं आपको सही तरह पैगाम पहुंचा ना पाया, ना जाने कितनी कमी कजियां रह गई, मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ। मैं भी एक इंसान हूँ, कमज़ोर हूँ, खुलिकुल इंसान हूँ दईफ़ा, अल्लाह कहता है इंसान कमज़ोर है, मेरी कमज़ोरी आड़े आ गई और उन कमज़ोरियों की वजह से मैं न जाने कितनी गलतियाँ कर बैठा। मेरी कोशिश ये थी
کہ آپ کو آپ کے آقا کی باتیں سناؤں. پھر بھی اگر کوئی غلطی کوتاہی رہ گئی تو معذرت چاہتا ہوں. مقصد نہیں تھا آپ کے دل کو ازردہ کروں، اس کے لیے بھی اگر کسی کا دل ازردہ ہوا ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں. مقصد نہیں تھا ازردہ کروں، مقصد بس یہ تھا آپ کو آپ کے آقا کا پیغام پہنچاؤں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے.